السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش رکھے۔ دوستوں، میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا، ایک چھوٹا سا عمل بتاؤں گا۔ اگر وہ عمل آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے، اگر وہ عمل کو آپ اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں تو آپ کی زندگی دوستوں بدل جائے گی۔ چلو پھر عمل کون سا ہے؟ بس ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ جیسے ہم ہر چیز کے لیے دعا پڑھتے ہیں نا، کھانا کھانے کی دعا، اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، سونے کی دعا، اس طرح۔ تو ایک دعا یہ ہے، یعنی جو کلمہ کہیں کہ جب بھی ہم سوئے، رات میں سوئے یا کہیں اور بھی سوئیں، تو سونے سے پہلے دوستو ایک چھوٹا سا عمل کر لے۔ وہ چھوٹا سا عمل کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر سوئے۔ دوستو، یہ پڑھنے کے بارے میں کیوں بار بار کہا جاتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ چلو ہم اس کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو بھی انسان پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تبارک و تعالی اگر اس کی روح قبضہ کر لیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، تو وہ انسان بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جی ہاں دوستو، آپ بالکل ٹھیک سن رہے ہیں، وہ انسان بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بس یہ طریقہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر سوئے۔ اس کے بعد جب بھی آپ یہ عمل کر کے دیکھیں تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوستو بہت سارے ایسے اعمال ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے کرنے کا حکم فرمایا، اور بہت سارے ایسے اعمال جو عامت انسان کرتے رہتے ہیں۔ اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی آپ عمل کریں تو شروع میں آپ کو تھوڑی بہت دقت آ سکتی ہے، پریشانی آئے گی، لیکن یہی عمل جب آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے، جب آپ اس کو بار بار کرتے رہتے ہیں، تو وہ عمل جب بھی آپ کریں تو آپ کو ایسا کوئی اس طرح کی کوئی دقت نہیں آئے گی، اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ جو پریشانی آپ پہلے سے کرتے تھے، پہلے عمل کرنے کی وجہ سے جو پریشانی آپ کے ساتھ آتی تھی، دوستو یہی وہ طریقہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر سوئے۔ اور دوستو، جب بھی اگر کوئی نیند میں اگر برا خواب دیکھے، اگر کوئی گندا خواب دیکھے، تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دعا پڑھنا نہیں جانتے۔ تو ایک طریقہ کیا ہے، عمل کیا ہے کہ اگر دائنے کروٹ سوتے ہیں ایسے کر کے، تو بائنے کروٹ ایسے لیٹ جائیں، ایسے لیٹ جائیں، اور پھر یہ لیٹیں، اور پھر جب بھی لیٹیں دھیان رکھنے کے بعد کہ جب بھی آپ لیٹیں تو ایسے اپنے پورے باڈی کو اور اپنے جہاں جہاں آپ یہ ہیں اس پورے بدن کا سے تھتکار دے، 3 مرتبہ اگر تھتکار دے پھر سوئے۔ تو دوستو یہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو انسان کہتے ہیں کہ ہم رات میں ٹھیک سے سو نہیں پاتے، ہمیں رات میں نیند نہیں آتی، تو اس کے لیے بہت بہترین عمل ہے کہ وہ انسان اگر اپنی زندگی میں لے کے آئے تو اس کو بہت بڑی کامیابی ملے گی دوستو۔ اور اس کو جو نیند کی شکایت ہوتی ہے، وہ نیند کی شکایت ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ تو دوستو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی احکام نازل کیے، اللہ کے نبی جتنے سارے طریقے بتائے، جتنے سارے آداب، اور اللہ کے نبی کی جتنے سارے حدیثیں ہیں، اگر ان حدیثوں کو اگر کوئی انسان عمل کرے، عمل میں لے کے آئے، تو دوستو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی زندگی میں جتنی ساری پریشانیاں ہیں، جتنے سارے مصیبتیں اور پریشانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے، تو وہ تمام پریشانی دوستو ختم ہو جائے گی۔ اور بار بار یہ سننے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان کچھ حاصل نہ کر پائے، اگر کوئی انسان کوئی چیز کو حاصل نہ کر پائے، تو یہ سوچتا ہے کہ ہمارے تقدیر میں تھا نہیں لکھا ہوا، ہماری قسمت خراب ہے۔ تو دوستو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قسمت جو ہے، تقدیر جو ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک آزمائش کے طور پر بنائی ہے، ایک آزمائش کے طور پر بنائی ہے۔ تو دوستو تقدیر کیا ہے کہ اگر کوئی انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، کوئی انسان اگر علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور وہ انسان جب علم حاصل کر لیتا ہے اور اس کے برابر کوئی اس کا کوئی دوست بچپن کا اگر وہ علم حاصل نہیں کرتا، تو کیا
जो इल्म हासिल नहीं किया वो अपने आप को यानी तकदीर के बारे में कह सकता है कि हमारे तकदीर में लिखा हुआ था ही नहीं कि इल्म हासिल करना। फिर तो मेरे मतलब दोस्तों बुजुर्गों में यही अर्ज करना चाहता हूँ कि तकदीर जो है आप इल्म खुद हासिल करोगे नहीं, फिर आप बार बार ये कहते रहोगे कि तकदीर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा ऐसे बनाया है, हमारे तकदीर में कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि तकदीर जो है ये अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइश के तौर पर बनाई है। बार बार तकदीर को दोष देना ये अच्छी बात नहीं है। आप कमाएंगे नहीं फिर कहेंगे कि हम गरीब हैं और हमारा तकदीर में ये लिखा हुआ था, तो तकदीर को बार बार दोष देना ये अच्छी बात नहीं है। तकदीर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने एक आजमाइश के तौर पर बनाई है। तो दोस्तों अब बहुत सारे ऐसे अमाल है, और अगर किसी घर में अगर तंगी आ जाती है, गरीबी आ जाती है, तो दोस्तों बेहतरीन तरीका क्या है कि सूर्य वाक़िया पढ़ के सोया करें। फजर की नमाज के बाद पढ़े सूर्य वाक़िया, एक मामूल बना ले, या फिर ईशा की नमाज के बाद दुआ पढ़कर या पढ़ करके फिर सोए। दोस्तों ये बहुत ऊंचा अमल है और ये तजुर्बा का अमल है। दोस्तों हमारे बड़े बड़े अकाबिर उलमा किए हैं इस अमल को। उसके घर से तंगी जो रिस्क की कमी है अल्लाह तबारक व तआला उसको दूर कर देते हैं अपने खजाने गैब से। तो दोस्तों ये छोटी छोटी अमल जब हम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें बड़े बड़े अमाल करने के तौफीक देंगे। तो दोस्तों मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि अमल चाहे कोई सा भी हो, अमल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो अमल को बिल्कुल छोटा करके या बिल्कुल कम तरीन समझ करके उस अमल को छोड़ नहीं देना है। उस अमल पर अमल करेंगे, क्यों कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। यह खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। दोस्तों बहुत सारे ऐसे अमाल हैं जिसको करने के लिए फिर यही कहते हैं कि अकाबिर उलमा जो हैं वो हमें कुछ सिखाते नहीं। तो दोस्तों इस लिंक में यही सारी चीजें, ये इस चैनल पे यही सारी चीजें के बारे में बात होती है। दोस्तों जो भी हमसे जुड़ना चाहे, जो हमसे रब्ता करना चाहे, दोस्तों डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे मैंने ऐसे लिंक दे रखे हैं जिससे आप हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं या फोन के जरिए से रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों दीन की सीखना सिखाना ये बहुत ऊंचा अमल है, क्योंकि ये दुनिया जब फना हो जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कुरान मजीद के अंदर कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनुना बिल्लाह, कि जो इंसान दीन सीखे और दूसरे को सिखाए। दीन में कुरान भी आ गया, अच्छे अच्छे अमाल भी आ गए, तरीका आ गया, नमाज का क्या तरीका है, रोजा का क्या तरीका है, मुस्तहब्बात आ गए, सुन्नत आ गए, आदाब आ गए। ये तमाम चीजें जो है दोस्तों ये वो दीन के अंदर ही आता है। कोई इंसान को नमाज का तरीका मालूम नहीं, उसको आपको मालूम था, आपने उन तमाम चीजें उनको बता दी। या कोई वजू का तरीका नहीं जानता है, आपने उनको जाकर के वजू का तरीका सिखला दिया। दोस्तों ये तरीका वो है जो इंसान नहीं जानता और फिर अगर अमल करना चाहे और अगर आप जानते हैं, जानने के बाद अगर दूसरे तक पहुंचाए, तो दोस्तों ये ऐसा अमल है कि सवाब से खाली नहीं है। दोस्तों बहुत सारे हमारे दीनी भाई ऐसे हैं जो दूसरों को सिखाते हैं, क्योंकि जिस कौम यानी जिस उम्मती हैं, जिस नबी के हम उम्मती हैं, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती को बहुत सारे ऐसे चीजों से, ऐसी दौलतों से नवाजा दोस्तों कि जिसके बारे में हम गुमान भी नहीं कर सकते थे। अब उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है कि पहले के जो अंबिया थे तो वो क्या करते थे कि अगर उनसे अगर कोई छोटी सी गलती हो जाती थी तो उस पर बहुत बड़ा सजा का, या मतलब ये कह सकते हैं आप कि सजा उसको दिया जाता। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि अगर एक कपड़े में अगर शराब लग जाए तो उस कपड़े को अच्छे से धोना नहीं, बल्कि उस कपड़े को काट करके उसको फेंकना पड़ेगा जहां तक शराब की बूंद आई है। दोस्तों ये तरीका जो है मुसलमानों पर बहुत शाख गुजरती थी परेशानी के, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के जरिए से अपने नबी के उम्मती के लिए इन तमाम चीजों को दूर करा दिया। दोस्तों ये बहुत आसान अमल है कि हम सीखे। हम अब देखिए कि बहुत सारे ऐसा इंसान है, मुसलमान है, वो नमाज नहीं पढ़ते, तो फिर उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है कि उसकी जिंदगी पे हमेशा डरावनी जिंदगी गुजरती है और उसको हमेशा ये ख्याल होता है
کہ جب ہم مریں گے अल्लाह तबारक व तआला के हम जब जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला से जब हम सवाल करेगा तो हम क्या जवाब देंगे। तो दोस्तों कोई भी इंसान अगर नमाज पढ़े, जो इंसान नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी की जो मकसद है उस मकसद को समझा देते हैं। और जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता सिर्फ दुनिया कमाने के पीछे अपने आप को उस पर सर्फ करता है, अपनी जिंदगी उसमें लगा देता है और नमाज नहीं पढ़ता, तो दोस्तों उसकी जिंदगी क्या है कि मरने के बाद अगर फरिश्ते उसको पूछे कि तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजरी, तुम कितने वक्त दुनिया में रहकर आए, तो उस शख्स का जवाब क्या होता है कि हम एक दिन रह करके आए या एक दिन से भी कम। तो दोस्तों इसकी यही वजूहत है कि दिन और रात दोनों मिला करके अल्लाह तबारक व तआला ने जो घंटे बनाए 24 घंटा, उस 24 घंटा में सिर्फ 1 घंटा अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए ना निकाले तो हमारी जिंदगी जो वो बेकार जिंदगी है। दोस्तों दुनिया तो कमाना ही है, दुनिया अगर नहीं कमाएंगे तो फिर दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा। मगर दुनिया कमाने का सही तरीका क्या है कि नहीं, दुनिया भी कमा रहे हैं, बीवी बाल बच्चे को भी पाल रहे हैं, पड़ोसी को भी देख रहे हैं, और हम पर किस किस के हुकूक है उन तमाम हुकूकों को भी देख रहे हैं। दोस्तों ये तरीका है। और बेहतरीन तरीका इस्लाम में क्या है कि जिसका अखलाक अच्छा हो, अल्लाह के नबी खुद ही इरशाद फरमाए कि कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा करीब मेरे नजदीक वो होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे। दोस्तों कैसे पता चलेगा कि हमारे अखलाक अच्छे हैं, तो वो जो है वो 2 चीजों पर आजमाई जाएगी। एक वो यानी गुस्से पर, कि गुस्से पर उसके हालात क्या है, उसका बर्ताव कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, और एक दूसरा कि जब इंसान किसी से कोई चीज कर्ज मिले और वो उसको ना लौटाए, यानी जो अखलाक एक अच्छा अखलाक वाला है और एक नॉर्मल इंसान, लेकिन वो टाइम पे टाइम देते जा रहा है कि नहीं हम आपको अभी देंगे। तो इस्लाम में बेहतर तरीका क्या है कि अगर आप किसी इंसान को कर्ज देते हैं और उसके बारे में आपको ये मालूम चल जाए कि नहीं वो इंसान वाकई में पैसे की जरूरत है इसको, और उसकी हालत के बारे में आपको मालूम है कि दे देंगे तो नहीं देगा, तो दोस्तों बेहतरीन तरीका यह है कि अगर आप उसको दे तो देने के बाद भूल जाए कि नहीं, या तो फिर उन पैसों को आप उसको सदका कर दे, तो यह तरीका है। लेकिन अगर आप उसको बार बार मांगने जाएंगे फिर ये करेंगे तो हो सकता है आप ना दे। तो दोस्तों इन तमाम तरीकों से आपको बच के रहना है। लेकिन इस्लाम के अंदर क्या है कि जो भी या कोई भी छोटा काम या कोई बड़ा काम हो तो हम अगर करते हैं तो हम करने के से पहले कुछ सोचें कि नहीं ये हम अमल करेंगे, या अगर कोई बहुत बड़ा काम करना है तो हम मशवरा से काम करें। दोस्तों तो ये जो तरीका वो है दोस्तों कि जो इंसान अपने एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई को बता सकता है, तरीका समझा सकता है। दोस्तों मैं ये करना चाहता हूँ कि जो भी दीन के बारे में अगर सीखना चाहें हमारे चैनल से सीखें। दोस्तों मैं अर्जा करता चाहता हमसे जितना भी हो सके, हम ही नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम आपकी मदद करेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो आप एक लाइक जरूर कर दे, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों आप कर दिए ना, बार बार क्यों बोलने की जरूरत पड़ती है, कर दो ना दोस्त यार। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटी को दबा दे। बेल आइकन की घंटी को इसलिए दबाए ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों चाहे 1 लाख आदमी हो 2 लाख आदमी हो, सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच जाएगी ये वीडियो। तो दोस्तों आई होप कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर भी करें। दोस्तों इसमें आपका ही फायदा है कि इंसान अगर सीखना चाहे, कुछ समझना चाहे, तो दोस्तों आप भी इसके हकदार है, यानी आप दूसरे को शेयर करेंगे तो आप भी इसके हकदार है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल मदनी चैनल कटिहारी के नाम से जो है इसको देख सकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।